Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study Windows and use of Microsoft Office. Now start the lecture and understand what is an operating system. See, an operating system is the interface between computer hardware and the end user. Operating system is most important for the proper functioning of computer system because processing of data, running different applications, file management and memory handling is all managed by the computer operating system. All modern computing devices, for an example, laptops, tablet, mobile phones, etc., comprise an operating system which helps in the smooth working of the device. For an example, Windows, right? Then Android, etc., etc. In the previous lecture, we have studied system software as well as application software and utility software. In this lecture, we will focus on Windows, right? Because this is important in the point of view of prelims examination, right? Yeah, MPPSC prelims. Because MPPSC has tendency to ask different questions from operating systems as well as एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें एक तरीके से हमने बेसिक्स को क्या किया था, कंप्लीट किया था. सो वी हैव स्टडीड बेसिक्स. फॉर एन एग्जांपल, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बट यहाँ से जो जितने भी जो विंडोज़ हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में MCQs के रूप में जो है पूछे जा सकते हैं, राइट. फॉर एन एग्जांपल, right? So when was Windows 1 was released, right? So when was Windows 1998 was released, right? So when was the MS Word introduced? So when was the MS Word introduced in Windows operating system, right? या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि when was task bar was included in operating system, or when was the Windows 8 released worldwide, right? Or when was the Windows 10 released worldwide? तो इस तरीके से जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. साथ ही साथ डिफरेंट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, राइट, जैसे MPPSC प्रीलिम्स में MCQs के रूप में पूछा गया था कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ MS Excel, तो उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है. तो इस तरीके से जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट. तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसको मैंने अंडरलाइन किया है और ये डाटा आपको एनी हाउ जो है वो याद रखना है. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड राइट व्हाट इज विंडोज़. तो विंडोज़ क्या है, देखिए विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके वेरियस क्या हैं, वर्जन है, राइट. इसीलिए इसको विंडोज़ फैमिलीज के नाम से भी जाना जाता है. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलीज, ऑल ऑफ विच आर डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. और इसमें से जो each family caters to certain sector of the computing industry. In other words में हम कह सकते हैं कि an operating system is a group of several graphical user interface families, all of which are developed, sold and marketed by Microsoft is known as Windows, right? और Microsoft operating system का जो current ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, विंडोज़ 10 हो जाएगा. सो लेट्स हैव द क्विक रिवीजन ऑफ विंडोज़. तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. जो विंडोज़ की इनिशियल रिलीज थी 28 नवंबर 1985 और 28 नवंबर 1985 को विंडोज़ 1 को जो है रिलीज़ किया गया था, राइट. This operating system is useful for personal computing which is available in 138 languages, right? और इसका जो default user interface है उसको Windows Shell कहा जाता है. This may be asked in the examination. The default user interface of Windows is known as Windows Shell, जिसकी वेबसाइट है microsoft.com.
Now let's talk about the history and development of Windows. So I told you that the initial computer did not have operating system, and user had to remember commands to run the program, right? So to run different program, users have to remember different commands, and this made the processing of data more complex. इसीलिए जो इंटरफेस मैनेजर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? विंडोज के द्वारा. सो इट वाज इन 1983. So it was 1983 when work on interface manager was started by Microsoft, और Microsoft ने अपना पहला जो वर्जन था वो 1985 में क्या किया था? रिलीज किया था. तो इट वाज 1983 व्हेन वर्क ऑन इंटरफेस मैनेजर वाज स्टार्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन जो था वो 1985 में क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था. और ध्यान रखना 1985 में जो विंडोज 1 था वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ना होकर या ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर ऑपरेटिंग क्या था? इन्वायरमेंट था. कैसे? मैं आपको पूरा का पूरा समझाता हूँ. देखिए, जो इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरफेस मैनेजर को डेवलप किया गया था, और विंडोज़ 1 में, विंडोज़ 2 और जो विंडोज़ 3, ये तीनों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर बेस्ड क्या है? ये ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है, विच मीन्स इनमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की पूरी जो थी क्वालिटीज़ नहीं थी. देयरफॉर विंडोज़ 1, विंडोज़ 2 एंड विंडोज़ 3 आर नोन एज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट. और जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 95, रिलीज्ड इन 1995. क्लियर? तो विंडोज़ 1 को रिलीज़ किया गया था 1985 में, देन विंडोज़ 3 को लॉन्च किया गया था 1990 में. तो 1990 में विंडोज़ 3 हो जाएगा. विंडोज़ 95 फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. सो 1995 में विंडोज़ 98 को रिलीज़ किया गया था 98 में, राइट. फिर विंडोज़ ME को 2000 में, या विंडोज़ इसको 2000 भी बोला जाता है. देन विंडोज़ XP को 2004 में, विंडोज़ विस्टा को 2007 में, विंडोज़ 7 को 2009 में, और विंडोज़ 10 को 2015 में क्या किया गया था? जो है रिलीज़ किया गया था. नाउ अब जो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स पहले से ही पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी विल स्टडी द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़, देन इन कीवर्ड्स के द्वारा ही हम उनको जो है समझ सकते हैं. तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाएगा. तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूज़र थ्रू पिक्चर ग्राफिक्स, राइट. पिक्चर्स, ग्राफिक्स एंड क्या हो जाएगा? आइकन्स हो जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, दिस इज द कंप्यूटर, राइट. अब कंप्यूटर को यूज़ करने के दो तरीके हैं, वेदर यू नो द कमांड, और आप इसके इंटरफेस के माध्यम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, लेट्स सी, दिस इज द होम, राइट. सो दिस इज द कंप्यूटर. अब आपको जो भी परफॉर्म करना है, जैसे आपको फाइल्स ओपन करनी है, तो आप इस यूज़र इंटरफेस में जो है इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये फाइल्स ओपन हो जाएंगी यहाँ पर, राइट. अच्छा, फिर यदि आपको फाइल्स ओपन नहीं करना है, डिफरेंट एप्लीकेशंस को किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को विजिट करना है, तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं, राइट. या फिर हम हमारे लेक्चर पर ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ सकते हैं. तो ये हम हमारी जो है ओरिजिनल स्लाइड पर आ गए हैं. तो यही क्या है यहाँ पर? यूज़र इंटरफेस है. तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, राइट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूज़र थ्रू पिक्चर, ग्राफिक्स एंड क्या हो जाएगा? आइकन्स हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एक्टिव विंडो. ये भी डायरेक्टली MCQ में पूछा जा सकता है कि विच इज़ द एक्टिव विंडो इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखिए, द विंडो विच इज़ being processed is known as active window. अब विंडो का मतलब क्या होता है कि देखिए, कंप्यूटर में डिफरेंट क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं,
मान लीजिए यू आर वर्किंग ऑन MS Excel, MS PowerPoint, राइट, इन द सेम टाइम यू आर लिसनिंग म्यूजिक, तो डिफरेंट 3 जो है एप्लीकेशंस आपके क्या होंगे, ओपन होंगे, राइट। तो जो टास्क बार है उसमें से जो भी विंडोज आपकी ओपन है वो क्या मिलेंगी आपको, इस तरीके से यहाँ पर जो है छोटे छोटे फॉर्मेट में आपको दिखेंगी। आप जैसे आप यहाँ पर गूगल को क्लिक करेंगे तो गूगल की विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर जीमेल खुली, जीमेल को ओपन कर लेंगे, किसी और दूसरे को क्लिक कर लेंगे, किसी तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। तो इस तरीके से जब आप कंप्यूटर पर वर्क करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है डिफरेंट क्या हो, विंडोज़ हो। अब वो डिफरेंट विंडोज़ में से एक्टिव विंडो कौन सी होती है, तो द विंडो विच इज़ बीइंग प्रोसेस्ड या द विंडो ऑन विच यू आर वर्किंग करेंटली, सो द विंडो विच इज़ बीइंग प्रोसेस्ड इज नोन एज एक्टिव विंडो। और इसका जो टाइटल बार होता है वो डार्क कलर होता है, राइट। व्हेन यू विल क्लिक ऑन द विंडो तो वो ओपन हो जाएगी, या उसके किसी भी पार्ट को आप क्लिक करेंगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ प्लग एंड प्ले, तो इनिशियली कंप्यूटर में किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता था, सो वी हैड टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर और मोबाइल, आफ्टर दैट हम उसको कनेक्ट कर पाते थे। बट नाउअडेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो प्लग एंड प्ले पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। व्हाट इज प्लग एंड प्ले, राइट। So in plug and play, computer automatically identifies the newly added hardware and makes it usable. For an example क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, right? So जैसे ही आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे, right? So when you would connect the pen drive, because of plug and play characteristics of operating system, the computer automatically identify the newly added hardware, right? इसीलिए there is no need to restart or switch off the computer after adding new hardware, इसको ही कहा जाता है plug and play। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइल, और यहाँ से तो MCQs जो है कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट, आपसे यही पूछा जा सकता है कि द ग्रुप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज नोन एज, तो उसको क्या कहा जाता है, फाइल। तो द ग्रुप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज फाइल। और जो फाइल नेम है वो अप टू 255 कैरेक्टर तक का हो सकता है। तो द फाइल नेम इन विंडोज कैन बी अप टू 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड इन विच देयर कैन बी नंबर्स। जो फाइल नेम है उसमें नंबर्स का, लेटर्स का, एम्प्टी स्पेस का यूज किया जा सकता है, बट स्पेशल सिंबल्स आर नॉट यूज। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो विंडोज में फाइल नेम में नंबर्स का, लेटर्स का, एम्प्टी स्पेस का यूज किया जा सकता है, बट स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड। एंड जो फाइल नेम है उसके 2 पार्ट होते हैं, राइट। द फर्स्ट पार्ट को क्या कहा जाता है, फाइल नेम कहा जाता है, और सेकेंड को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। तो विंडोज़ में फाइल नेम के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है फाइल नेम होता है और जो सेकंड पार्ट होता है उसको एक्सटेंशन कहते हैं। अब एक्सटेंशन क्या होता है, तो देखिए एक्सटेंशन आर ऑटोमेटिकली गिवन बाय कंप्यूटर ऑन सेविंग फाइल, राइट, जिनको डॉट के बाद दिया जाता है। किसके बाद दिया जाता है, डॉट के बाद दिया जाता है, राइट। एंड ये मेनली कितने कैरेक्टर्स का बना हुआ होता है, 3 कैरेक्टर्स का बना हुआ होता है, ताकि यू कुड डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट फाइल्स, या आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। यू कैन आइडेंटिफाई विच इज़ द टेक्स्ट फाइल, विच इज़ ग्राफिक फाइल, विच इज़ बेसिक प्रोग्राम फाइल, विच इज़ डॉक्यूमेंट फाइल। तो ये इसके क्या होते हैं, एक्स जो है यूजेज होते हैं। तो इस तरीके से 4 फैक्ट आपको याद रखना है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट extensions are automatically given by the computer on saving the file. Second, extensions को जो है extension name is given after the dot के बाद दिया जाता है, and extension name consists of 3 characters only, right? And this extension is given automatically by the computer so that you could differentiate the types of file. For an example, जैसे मैंने कहा कि xyz.exe फाइल का नेम है, सो exe के माध्यम से यू कैन कम टू नो कि ये क्या है, यूज एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो .exe, राइट, .exe
तो रिप्रेजेंटेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। अगर फाइल नेम में .doc है तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होगी, .tat है तो वो टेक्स्ट फाइल होगी, .hlp है तो वो हेल्प फाइल होगी, .jpg है तो वो ग्राफिक फाइल होगी, .bas है तो वो बेसिक प्रोग्राम फाइल होगी, .bak है तो वो क्या होगी, बैकअप फाइल होगी, और .wav है तो वो साउंड या वेव फाइल होगी, राइट। So now let's study different versions of Windows operating system, जिसमें हम किसको पढ़ेंगे, राइट, विंडोज़ फर्स्ट, विंडोज़ सेकेंड, विंडोज़ थर्ड, विंडोज़ 1995, विंडोज़ 1998, विंडोज़ 2000, देन विंडोज़ 2007, विंडोज़ 2008 और विंडोज़ 2010। इसके अलावा भी विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी, इन सब वर्जन्स को जो है हमको पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के लिए ये कब रिलीज हुए हैं और इनकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको याद रखना है। तो 2 से 3 फैक्ट आप याद रखेंगे तो इजीली विंडोज़ आपका बहुत ही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही साथ ये मेंस में भी है तो आपको मेंस में भी ये क्या होगा, इसका जो है यूज़ होगा, राइट। तो लेट्स स्टडी विंडोज़ 1। Windows 1 was released on 28th November 1985. So Windows 1 was released on November 20, 1985 and this was pure operating environment. So as I told you earlier, ये operating system नहीं है because this did not have all features of operating system. इसको graphical user interface के आधार पर डेवलप्ड एक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट माना जाता है जो कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंडोज़ फर्स्ट वाज रिलीज्ड इन 1985। ये आपको डेट याद नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, बट यू मस्ट कम टू नो द ईयर ऑफ, राइट, ईयर ऑफ रिलीज। तो विंडोज़ फर्स्ट को रिलीज किया गया था 1985 में। दिस इज प्योर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड विच वाज बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें सिंपल ग्राफिक्स को क्या किया गया था, यूज किया गया था। साथ ही साथ इसमें जो ऑफर्ड लिमिटेड मल्टीटास्किंग थी उसमें ह्यूज पोटेंशियल था, राइट। तो यहाँ पर जो विंडोज़ फर्स्ट है, विंडोज़ सेकेंड है और विंडोज़ थर्ड है, राइट। यहाँ पर ये नोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ फर्स्ट, विंडोज़ सेकेंड एंड विंडोज़ थर्ड, राइट, ये विंडोज़ की कैटेगरी में आते हैं। किसमें? विंडोज़ सूट की कैटेगरी में आते हैं, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो विंडोज़ फर्स्ट, विंडोज़ सेकेंड एंड विंडोज़ थर्ड केम अंडर द कैटेगरी ऑफ विंडोज़, बट ये जो है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, राइट। सो none of the above mentioned Windows was operating system। ये जो है विंडोज़ 1, विंडोज़ सेकेंड एंड विंडोज़ थर्ड ये कैटेगरीज ऑफ विंडोज़ में आते हैं एंड वर्किंग बेस्ड ऑन द ग्राफिकल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। तो आप जनरली याद रखें विंडोज़ 1, विंडोज़ सेकेंड एंड विंडोज़ थर्ड ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है। विंडोज़ 95 इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। Now let's study Windows सेकेंड। तो Windows सेकेंड was released on 9th December 1987 और ये 16 बिट क्या है, दिस इज 16 बिट ग्राफिक यूजर इंटरफेस्ड बेस्ड क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग क्या है, इन्वायरमेंट है। तो 16 बिट ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ये एक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है जिसमें कंट्रोल पैनल को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड, राइट, एंड एक्सेल को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड अनलाइक विंडोज 1, राइट, इट हैड द कैपेसिटी टू अलाउ एप्लीकेशन टू ओवरलैप ईच अदर, राइट, एंड इट वाज द लास्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज नॉट रिक्वायर हार्ड डिस्क, मतलब इसकी मेमोरी क्या थी, छोटी थी और इसमें उतने ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं होते थे। तो 1987 को जो है लॉन्च किया गया था। 16 बिट ग्राफिक यूजर इंटरफेस्ड बेस्ड क्या है, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है जिसमें कंट्रोल पैनल और फर्स्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल और वर्ड को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये हार्डवेयर
इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता था। देन क्या हो जाएगा, विंडोज़ थर्ड। विंडोज़ थर्ड को रिलीज़ किया गया था 1990 में, और ये मल्टीटास्किंग में क्या था, बेटर था। सो विंडोज़ थर्ड को लॉन्च किया गया था 1990 में। इट वाज बेटर एट मल्टीटास्किंग, और जिसके लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया था। इट हैज़ बोथ कन्वेंशनल एंड एक्सटेंडेबल मेमोरी। कन्वेंशनल मेमोरी विच इज़ राइट, जैसे रैम हो जाएगा और रोम हो जाएगा, और एक्सटेंडेबल में आप पेन ड्राइव का, हार्ड ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। और ये पहला विंडोज़ का वर्जन है जिसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन मिला था, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग में बेटर था। साथ ही साथ इसकी मेमोरी और स्टोरेज भी बहुत अच्छी थी, राइट। सो इन दिस वे जो विंडोज़ फर्स्ट, विंडोज़ सेकेंड और विंडोज़ थर्ड हैं, ये सभी ग्राफिकल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट माने जाते हैं, नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। Now Windows 95. So Windows 95 is the first complete operating system released by Microsoft. तो first operating system released by Microsoft is the Windows 95, right? तो Windows 95 फर्स्ट कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको रिलीज किया गया था अगस्त 15, 1995 में, एंड इट मर्ज्ड MS-DOS। MS-DOS क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ प्रोडक्ट को इसमें मर्ज कर दिया गया था, राइट। इट सिंप्लीफाइड द प्लग एंड प्ले फीचर्स। तो जो प्लग एंड प्ले फीचर्स हैं वो किस में सिंप्लीफाई हुए थे, विंडोज़ 95 में, विच मीन्स विदाउट यूजिंग रीस्टार्ट और स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर, राइट। जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली पेरिफेरल डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है और यूजेबल बनाता है। ऑल्सो taskbar and start menu was introduced with this Windows 95। जो स्टार्ट मेन्यू है इसमें आप एप्लीकेशन को, सेटिंग्स को सर्च कर सकते हैं, राइट। दिस इज एडवांस्ड फ्रॉम द 16-bit ग्राफिक यूजर इंटरफेस टू 32-bit। तो ये 32-bit क्या था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस्ड बेस्ड क्या है, पहला कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें लॉन्ग फाइल नेम्स कुड बी सेव्ड। जो फाइल्स थी उनके लॉन्ग नाम भी या लॉन्ग फाइल्स नेम कुड बी सेव्ड इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। इनिशियली जो विंडोज़ 95 था उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल्ड नहीं था, बट by the release date of Windows 95 the first version of Internet Explorer was installed। ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि विच इज़ द वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज इंस्टॉल्ड। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका फर्स्ट वर्जन को लॉन्च किया गया था विंडोज़ 95 के साथ में। वहीं फर्स्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड और MS जो एक्सेल है उसको लॉन्च किया गया था विंडोज़ सेकेंड के साथ में, राइट। और इसको 2001 में आउटडेटेड जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। देन क्या हो जाएगा, विंडोज़ 98। तो बट ऑब्वियसली विंडोज़ 1998 को 1998 में ही क्या किया गया था, रिलीज़ किया गया था, एंड इट इज़ 16-bit एज वेल एज 13-bit प्रोडक्ट बेस्ड ऑन MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये इंटायरली न्यू वर्जन नहीं है बल्कि जो विंडोज़ 95 है उसका ही ट्यून्ड अप वर्जन है। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर का 4.01 जो वर्जन था उसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, एंड इट डिड नॉट सपोर्ट USB प्रिंटर्स। तो जो USB प्रिंटर्स जिनको USB के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं उनको ये सपोर्ट नहीं करता था। साथ ही साथ इट डिड नॉट सपोर्ट मास स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। और इसका जो अपडेटेड वर्जन था वो 1999 में जो है लॉन्च किया गया था। नाउ विंडोज़ 2000। तो विंडोज़ 2000 को जो है विंडोज़ 2000 वाज रिलीज्ड इन 2000। तो विंडोज़ 2000 को रिलीज़ किया गया था 2000 में, बट इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 1999 में ही जो है स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें कुछ फीचर्स का क्या था, कोड था। सो विंडोज़ 2000 Windows 2000 had a core set of features, right?
तो विंडोज़ 2000 हैड अ कोर सेट ऑफ फीचर्स, बट इसके अलावा भी इसके 4 क्या थे, डिफरेंट एडिशंस थे जिनको डिफरेंट सेक्टर्स की नीड के आधार पर बनाया गया था। तो विंडोज़ 2000 हैड अ कोर सेट ऑफ फीचर्स बट इट हैड 4 डिफरेंट एडिशंस, राइट। फॉर एन एग्जांपल, सर्वर, प्रोफेशनल, एडवांस सर्वर एंड डाटा सेंटर सर्वर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सर्वर एसेस। तो जो इनिशियली जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम एवर, राइट। इसमें लोकल डिस्क मैनेजर को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ ये इसमें मल्टीलिंगुअल यूज़र इंटरफेस था, विच मीन्स इट सपोर्टेड मैनी लैंग्वेजेस। और जो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है उसको 138 लैंग्वेजेस में जो है रिलीज़ किया जाता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, विंडोज़ एक्सपी। तो विंडोज़ एक्सपी वाज रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 25 इन 2001। तो विंडोज़ एक्सपी को 2001 में जो है रिलीज़ किया गया था। एंड दिस वाज एडवांस पोर्टेबल कंप्यूटर सपोर्ट, राइट। तो ये जो एडवांस्ड पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर हैं उनके लिए क्या था, सपोर्टेड था। जैसे क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा। तो विंडोज़ एक्सपी इज अवेलेबल फॉर एडवांस पोर्टेबल कंप्यूटर्स, राइट। साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक जो वायरलेस है, राइट, ये इसमें सपोर्टेड था। तो जैसे जो लैपटॉप वगैरह होते हैं, लैपटॉप में जैसे माउस है या कीबोर्ड है, उसको ब्लूटूथ के माध्यम से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो विंडोज़ एक्सपी को जो पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर हैं उनके लिए सपोर्टेड था। इसमें ऑटोमेटिक वायरलेस कनेक्शन भी सपोर्टेड था। इसमें फास्ट जो था वो स्टार्टअप होता था। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था उसका वो बेहतर हो चुका था। साथ ही साथ इसमें हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर भी अवेलेबल था। देन विंडोज़ विस्टा हो जाएगा। विंडोज़ विस्टा को 2007 में लॉन्च किया गया था एंड इट हैड एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसकी जो है विशेषता क्या है, इट इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़ डीवीडी रोम फॉर इंस्टॉलेशन। तो डीवीडी रोम के माध्यम से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा विंडोज़ 7, राइट। तो विंडोज़ 7 को 2009 में क्या किया गया था, रिलीज़ किया गया था। तो विंडोज़ 7 को 2009 में रिलीज़ किया गया था एंड इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यू फीचर्स को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये काफ़ी फेमस भी है। तो विंडोज़ 7 को लॉन्च किया गया था 2009 में एंड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू फीचर्स वर इंट्रोड्यूस। साथ ही साथ जो कुछ फ्यू फीचर्स फ्रॉम द पास्ट विंडोज़ उनको रिमूव किया गया था, राइट। न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ जो विंडोज़ सेल थी उसको रीडिज़ाइन किया गया था, राइट। साथ ही साथ इंक्रीमेंटल अपग्रेड टू द विंडोज़ लाइन की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, इसमें लाइब्रेरी को भी क्या किया गया था, ऐड किया गया था। साथ ही साथ इसका जो हार्डवेयर सपोर्ट था वो एक्सटेंड हो चुका था। नाउ हो जाएगा विंडोज़ 8। अगेन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या किस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज़ है वो मोबाइल्स में किया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, विंडोज़ 8। So Windows 8 was released on 26 October in 2012 and this was optimized for touch-based electronic devices such as tablets and mobile phones. So this Windows 8 operating software has optimizations for touch-based, right? Touch-based electronic devices, right? और इसको इंस्टॉल किया गया था न्यू डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स, राइट। इसका जो इंटीग्रेशन था उसको क्लाउड सर्विसेज से जो है इंक्रीज़ किया गया था। तो इंक्रीज्ड इंटीग्रेशन विद क्लाउड सर्विसेज। साथ ही साथ इसमें विंडोज़ सर्विस भी था, राइट। तो विंडोज़ स्टोर सर्विस भी थी, राइट, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन में विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली
उस ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको यूज़ किया जाएगा और उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विंडोज़ स्टोर सर्विस के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसमें टास्क जो मैनेजर था उसको रिडिज़ाइन किया गया था, न्यू सिक्योरिटी जो फीचर्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, साथ ही साथ जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस थे, साथ ही इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस कुड बी डायरेक्टली डाउनलोडेड। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर विंडोज़ 10 जो कि करंटली क्या है यूज़ किया जाता है। तो विंडोज़ 10 वाज रिलीज्ड ऑन जुलाई 29, 2015। तो इसको 2015 में जो है लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एड्रेसेस शॉर्टकमिंग्स इन द यूज़र इंटरफेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद विंडोज़ 8। तो विंडोज़ 8 में जो भी शॉर्टकमिंग्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉर्ट आउट या एड्रेस किया गया था विंडोज़ 10 में। और इसमें वर्चुअल जो डेस्कटॉप सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट हैड द एबिलिटी टू रन विंडोज़ स्टोर एप्स विद इन विंडोज़ ऑन द डेस्कटॉप रेदर देन इन द फुल स्क्रीन। तो जितने भी जो विंडोज़ स्टोर के प्रोग्राम हैं उनको फुल स्क्रीन की बजाय विंडोज़ में ही रन किया जा सकता है। और इसमें जो न्यू आइकन्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ सेकेंड जो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि टू रिड्यूस द स्टोरेज शॉर्टकमिंग्स विंडोज़ 10 ऑटोमेटिकली कंप्राइजेज द फाइल साइज, ताकि जो लार्ज फाइल है वो स्मॉल फाइल में कन्वर्ट हो जाए और लेस स्टोरेज क्या हो रिक्वायरमेंट हो। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द 11 वर्जन्स ऑफ विंडोज़। अब विंडोज़ में कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं वो हम समझते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने देखा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्लीकेशन सिस्टम के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या करता है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। तो विंडोज़ इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, विंडोज़ इज आ ऑपरेटिंग जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। एंड देयर आर ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस विच आर अवेलेबल एट द विंडोज़ स्टोर, और उन एप्लीकेशंस को उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल जो विंडोज़ स्टोर है वहाँ से वेब ब्राउज़र्स को, एडोब फोटोशॉप को, एडोब रीडर को जिसमें PDF रीड की जाती है, मैसेंजर को, मीडिया प्लेयर्स को, गेम्स को, ऑडियो वीडियो चैटिंग ऐप्स फॉर एन एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, मैप्स, कैलेंडर्स एंड सो ऑन, जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूजेस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो जो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मेनली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है ये इसमें कई क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमने पढ़ा था विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, नाउ वी विल फोकस ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक सूट होता है जिसमें स्पेसिफिक टास्क के लिए कई क्या हैं एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल MS वर्ड, देन MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, देन क्या हो जाएगा MS आउटलुक हो जाएगा, राइट, देन MS क्या हो जाएगा, वन नोट हो जाएगा, राइट। इन सब के बारे में हम डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट इज आ सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1998। तो पहला तो MCQ एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि MS ऑफिस को कब डेवलप किया गया था, तो 1998 में, जिसमें कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और करंटली जो है वो किसका यूज़ किया जा रहा है, MS 2016 का। तो MS ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर which was developed by Microsoft in 1988, right, 1988, and this office suite comprises various applications which form the core of computer uses in today's world, और currently MS 16 का जो है वो यूज़ किया जा रहा है। Now let's study
MS ऑफिस एप्लीकेशंस और उनके फंक्शंस को, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, MS वर्ड हो जाएगा, राइट। अब देखिए MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, एप्लीकेशन है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को पढ़ा था, जिसके माध्यम से वर्ड को या टेक्स्ट को जो है टेक्स्ट को क्रिएट किया जा सकता है, उसको जो है टेक्स्ट को क्रिएट किया जा सकता है और उसको एक तरीके से अपने अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, राइट। तो MS वर्ड वाज रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 25 इन 1983 और इसको विंडोज सेकेंड के साथ में, किसके साथ में, इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो विंडोज सेकेंड के साथ में जो है रिलीज किया गया था। तो MS वर्ड वाज रिलीज्ड ऑन 25 अक्टूबर इन 1983, राइट, और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो विंडोज सेकेंड के साथ में रिलीज किया गया था, राइट। MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन विच मीन्स इसका यूज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में किया जा सकता है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है, राइट। MS वर्ड के माध्यम से जो टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर प्रोफेशनल यूज। फॉर एन एग्जांपल आप रिज्यूम का टेम्पलेट बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें वर्क आर्ट, आपको टाइटल के लिए, डिज़ाइन के लिए डिफरेंट टाइप के लेटर्स मिल जाएंगे, कलर्स का, इमेजेस का, एनिमेशंस का जो है यूज़ किया जा सकता है। एंड दिस फाइल इज़ डाउनलोडेबल इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, राइट। इसके द्वारा ऑथर्स हैं, राइट, वो राइटिंग या एडिटिंग जो है की जा सकती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, MS एक्सेल, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। अब इसका जो है स्प्रेडशीट के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। अगर एक तरीके से देखें तो जो वर्ड डाटा है या टेक्स्ट डाटा है, वर्ड डाटा या टेक्स्ट डाटा को प्रोसेस किया जाता है MS वर्ड के द्वारा। एंड जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है, जिसमें हमको किसी भी प्रोडक्ट का जैसे क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, या स्टूडेंट्स के क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे, जैसे 2003, 43, राइट। तो हमको अगर हमारे पास में न्यूमेरिक डाटा हो और मोस्ट प्रोबेबली उस डाटा को फिर ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो ये एक कम्बरसम प्रोसेस होती है। फॉर एन एग्जांपल जैसे शॉपकीपर है, अब शॉपकीपर अपने पास में एक बुक रखता है कि उसने कितना जो है कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए में कब बेचा है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, राइट। तो उसको एक जो है रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। वो सेम प्रोसेस किया जा सकता है MS एक्सेल के द्वारा, राइट। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो MS एक्सेल है, राइट, MS एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन या ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे डाटा प्रोसेसिंग को या जिससे डाटा को इजीली प्रोसेस किया जाता है। और स्पेशली जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है और जो न्यूमेरिक डाटा है, राइट, तो न्यूमेरिक, राइट, स्पेशली जो न्यूमेरिक डाटा है और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को जो है MS एक्सेल के द्वारा इजीली प्रोसेस किया जा सकता है, राइट। MS एक्सेल में डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में, किसमें, टेबुलर फॉर्मेट में प्रोसेस किया जाता है। तो लार्ज डाटा कैन इजीली बी मैनेज्ड एंड सेव्ड इन टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग MS एक्सेल। ऑल्सो जो MS एक्सेल में जो टेबुलर फॉर्मेट में जो डाटा है उसका कैलकुलेशन भी क्या किया है, कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। तो कैलकुलेशंस कैन बी डन बेस्ड ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इंटर्ड इनटू द सेल ऑफ स्प्रेडशीट विद इन द सेकेंड्स। तो विद इन द सेकेंड्स में ही इसमें डाटा को कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। अब इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो स्प्रेडशीट को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो मेजरली MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्रेडशीट्स, और जो स्प्रेडशीट है उसको ही क्या बोलते हैं, वर्कशीट भी कहते हैं। सो दिस इज यूज्ड टू मेक स्प्रेडशीट और वर्कशीट। अ स्प्रेडशीट और वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ ग्रिड्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो स्प्रेडशीट होती है वो डिफरेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रिड्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। और इन्हीं रोज और कॉलम से ही क्या बनती है, सेल बनती है, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए जैसे ये इस तरीके से क्या हो जाएंगी, ये अब यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, रोज हो जाएंगी, राइट, और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कॉलम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी
उसको ही क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, जिसमें डाटा को क्या किया जाता है, इंटर किया जाता है। और ये एक क्या कहलाएगी यहाँ पर, ये एक पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, वर्कशीट यहाँ पर कहलाएगी, राइट। सो MS Excel इज यूज्ड फॉर मेकिंग spreadsheet or worksheet, and spreadsheet consists of grids in the form of rows and columns, which is easy to manage and can be used as a replacement of a paper, जिसमें टेबुलर फॉर्म में डाटा को क्या किया जाता है, डाटा को सेव किया जाता है, राइट। इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है, सेल होती है, जिसमें डाटा को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। ऑल्सो जो वर्कशीट होती है, तो अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्कबुक, राइट। तो इसमें जो क्लियर, सो अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्कबुक। और जनरली बाय डिफॉल्ट जो वर्क होती है उसमें कितनी सीट होती हैं, 3 सीट होती हैं, और वर्कबुक में आप 3 से ज़्यादा सीट पर भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन का क्या होता है, .xls इसका एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, MS पावर पॉइंट। अब देखिए MS पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर एक तरीके से हम देखें तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर क्या है, दिस इज अ ऑडिटोरियम, राइट। यहाँ पर दिस इज द ह्यूज ऑडियंस, राइट। अब ह्यूज ऑडियंस को जनरली आप कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन भी क्या होनी चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो आप जनरली यहाँ पर PPT के द्वारा, राइट, PPT के द्वारा जो है आप आपकी ऑडियंस को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो PPT है, PPT में क्या होती है, स्लाइड होती हैं, जैसे ये स्लाइड हो जाएगा, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है। उस स्लाइड में आप फोटो को, वीडियो को, राइट, फोटो को, वीडियो को और डिफरेंट टाइप के जो डाटा है उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें स्लाइड्स को हम टाइमर भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर जो कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और जैसे 10 सेकेंड्स होंगे ये स्लाइड जो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। तो इससे जो है जो ऑडियंस है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ईजी होता है, राइट। चलिए बाकी का ये एक PPT ही है, या ये जो PPT आपको दिख रही है ये पावर पॉइंट पर ही बनी है, राइट। तो MS पावर पॉइंट को 28 अप्रैल 1987 में लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था, MS पावर पॉइंट को 1987 में लॉन्च किया गया था। एंड दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस, राइट। एक प्रेजेंटेशन में डिफरेंट क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं जो कि डाटा को डिस्प्ले करती हैं, और ईच स्लाइड में, राइट, ईच स्लाइड में कंटेन ऑडियो, विच मीन्स एक स्लाइड में आप ऑडियो फाइल को, वीडियो फाइल को, ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को, बुलेट को, राइट, और टेबल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। नॉर्मली वीडियो में कई बार आपने मैप्स देखे होंगे, राइट। ऑडियो फाइल जनरली जो है वो हम नहीं डालते हैं, बट वीडियो या जो JPG फॉर्मेट में या जिप फॉर्मेट में कई बार आपने वीडियो भी देखे होंगे, राइट। इसका प्रोफेशनल यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे टीचिंग के लिए हो जाएगा या आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए। एंड यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैन बी मेड मोर इंटरेक्टिव। इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है, .ppt। देन क्या हो जाएगा, MS एक्सेस। तो MS एक्सेस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो डाटा को क्या करता है, मैनेज करता है, और इसमें डाटा को टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के रूप में क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। तो MS Access was released on November 13 in 1992 and it is database management software, which means इसके माध्यम से database को मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन MS Access, और इसके माध्यम से डाटा को सेव किया जाता है। साथ ही साथ जो डाटा है उसको अदर फॉर्मेट में भी क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका एक्सटेंशन क्या है, .accdb हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर MS आउटलुक हो जाएगा। तो MS आउटलुक दरअसल है क्या, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है, सिस्टम है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका
इवेंट्स कि आपको जो है अपकमिंग डेज में इतनी तारीख को आपको विजिट करनी है, टेस्ट देना है, राइट, उसके बाद में एग्ज़ाम देना है, फॉर्म फिल करना है, राइट। जब आपके पास में ह्यूज वर्क होते हैं तो आप उनको मैनेज करने के लिए MS आउटलुक का यूज़ कर सकते हैं। तो MS आउटलुक was released on 1997 and it is a personal information management system। तो ये personal information management system होता है which can be used both as a single user application or multi user software, right, and its functions include टास्क मैनेजिंग, तो कौन सी डेट पर आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है वो मैनेज किया जा सकता है। कैलेंडरिंग, राइट, आपको किसी स्पेसिफिक डेट पर कोई भी परफॉर्म करना है तो कैलेंडरिंग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट मैनेजिंग हो जाएगा, जर्नल लॉगिंग हो जाएगा और वेब ब्राउजिंग हो जाएगा। इट इज़ द ईमेल क्लाइंट ऑफ द ऑफिस सूट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा ध्यान रखना। MS ऑफिस सूट का ईमेल क्लाइंट क्या है, यहाँ पर MS आउटलुक ही है जिसका एक्सटेंशन होता है .pst। नेक्स्ट हो जाएगा MS क्या हो जाएगा, वन नोट हो जाएगा, राइट। सिंपली इससे आप डिफरेंट जो है नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो MS वन नोट वाज रिलीज्ड ऑन नवंबर 19, 2003। तो MS वन नोट को नवंबर 19, 2003 को क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। और इट इज़ अ नोट टेकिंग एप्लीकेशन, इससे नोट को क्या किया जा सकता है, डिफरेंट जो नोट हैं उनको आप लिख सकते हैं। सो इट इज़ अ नोट टेकिंग एप्लीकेशन। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था इट वाज अ पार्ट ऑफ द ऑफिस सूट ओनली, बट लेटर डेवलपर्स मेड इट फ्री, स्टैंड अलोन एंड इजीली अवेलेबल एट प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉइड क्या हो जाएगा, डिवाइसेस हो जाएगा। और जनरली हर एक मोबाइल फ़ोन में नोट होता है, राइट। और नोट में आपने किस समय पर कौन सी एक्टिविटी की है, राइट, कब आपने कोई सी एक्टिविटी की है। नॉर्मली आप जो भी आपके डेली वर्कर में आपने कोई किसी को जो है जैसे पैसे दिए हैं, राइट, जैसे अगर हम देखें तो जो खाता बुक है वो कंसेप्ट अभी आया है, बट पहले आपने किसी को बुक दी है, पैसे दिए हैं, राइट, किसी को कुछ सामान देना है, फॉर्म डालना है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एंड दीज, राइट, द नोट्स में इंक्लूड इमेजेस, टेक्स्ट, टेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .1 होता है, और इट कैन बी यूज्ड बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, राइट। तो इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन के तौर पर जो है यूज़ किया जा सकता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड एप्लीकेशन डिफरेंट, we have studied different versions of Windows and we have studied different application softwares as well, right। Please remember कि इनको कब रिलीज़ किया गया है, किसी भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ कहाँ होता है। वंस यू हैव रिमेंबर्ड, डेफिनेटली इनसे जो भी प्रीलिम्स में एग्जाम्स, प्रीलिम्स MPPSC प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट, you would be able to answer it properly, right। So we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.